पठानकोट सिविल अस्पताल में जहां डॉक्टरों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं, वहीं पर पठानकोट की महिलाओं ने किया जबरदस्त विरोध। उड़ान एनजीओ की प्रधान शशिकांता और नारी शक्ति संगठन की प्रधान ने भी कही डॉक्टरों को सस्पेंड करने की बात। वहीं पर जब इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री लालचंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई जारी है, जो भी दोषी होगा उसे सज़ा दी जाए। नमस्कार, मैं हूँ पुष्पलता ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो हलचल पंजाब। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਡਾਨ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਨਰਸਿਸ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੱਗਿਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ MBBS ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ MD ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਪਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਟਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੇਟਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੱਚਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, 3-3 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ।
और मैं तो रादर यह कहांगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने SMO हो गया, CMO हो गए, असिस्टेंट सिविल सर्जन हो गई, सब ते एक्शन ले जाने चाहिए कि यह तुहाडे हॉस्पिटल च किस तरह दी इनह्यूमन, इस तरह दी इंसानियत तो गिराई हुई घटनावां जड़ियां वै हो रही वै। मैं मान सरकार नूं भी कहांगी कि इहदे ते मैं एक औरत होने दे नाते मैं कहांगी कि तुसी एक औरत ते जो इन्होंने दरिंदगी वरती है, समझो एक इस तरह के इंसानियत तो गिरिया हुई चीज़ां कीतियां उहदे ते तुरंत एक्शन लिया जाए तो विधान सभा च सैशन बिठाया जाए और इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बर्खास्त करके इन्होंने उत्ते बुलाया जाए कि यह क्यों हुई घटना। और मैं हैल्थ मिनिस्टर नूं भी यह रिक्वेस्ट करांगी, एक NGO वालों, एक भारत की नारी होने वालों, एक पंजाब की नारी होने वास्ते, एक नारी होने दे करके कि इन्हां दे तुरंत एक्शन किया जाए कि दोबारा तो किसी भी हॉस्पिटल च जिहड़ा कि पंजाब च नंबर 1 सी साडा पठानकोट, जो उत्थे यह हाल है तो बाकी हस्पतालों च की हाल होणगे, इन्हां ते तुरंत एक्शन किया जाए ताकि कोई भी डॉक्टर कभी जरूरत भी ना करे इस तरह करन दी। गल करिए आरती जी नाल जिहड़े कि नारी शक्ति संगठन दे इस वेले वो मैंबर ने, तो उन्होंने नाल गलबात करिए कि जिहड़ा सरकारी हॉस्पिटल दे विच डॉक्टरां ने जिहड़ी इन्नी शर्मनाक घटना नूं अंजाम दिता है उस दे बारे इन्हां दा की विचार है। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार मैम, क्या कहना चाहते हो आप जो सिविल हॉस्पिटल में एक औरत की इतनी इंसल्ट की गई है उसके बारे पहले में? तो सबसे पहले ये बहुत शेमफुल इंसिडेंट हुआ है हमारे शहर में, पठानकोट में। सब सिविल हॉस्पिटल जो है वो पंजाब का रिप्यूटेड हॉस्पिटल में आता है, 2nd नंबर पे आता है। और सिविल हॉस्पिटल एक ऐसा है कि जो कॉमन पर्सन के लिए माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही भागता है। बट जब से ये हमने सुना है कि वहाँ पे एक लेडी ने जैसे डिलीवरी की है, तो मुझे तो पहले बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ें हम जो है वो यूपी साइड में सुनते थे कि वहाँ पे ऐसा होता था, वहाँ के लोगों ने इम्प्रूव कर लिया है। बट यहाँ पे पंजाब में हमारे आसपास ही ऐसा हो गया है। और देखो, एक लेडी है, लेडी के लिए डिलीवरी करना एक गॉड की तरफ से होता है। और वहाँ पे डॉक्टर्स और जो नर्सिस हैं, स्टाफ है, आप खुद सोचिए कि वहाँ पे एक लेडी भी हो ना, वो भी एक लेडी की प्रॉब्लम समझती है कि उसकी जो है डिलीवरी है उसकी हेल्प करनी है। और उस टाइम देखो डॉक्टर और नर्सिस कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो ये बहुत शेमफुल है मेरे लिए तो। और आपको पता, सिविल हॉस्पिटल जो है वो फंड्स है, हम टैक्स पे करते हैं और हमारे टैक्स पे से ही ये चीज़ चलती है। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो कहाँ पे वो जा रहा है? एक कॉमन जो पर्सन है, जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, क्योंकि जिसके पास मनी नहीं है वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट पे। लेकिन वहाँ पे भी एक कॉमन पीपल को अगर वहाँ पे कुछ देखा नहीं जा रहा, तो जो एक है नॉर्मल पीपल है वो कहाँ पे जाएंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मेरे लिए तो बहुत है कि डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर एक भगवान के बाद जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर को ही समझते हैं अपना सहारा, कि डॉक्टर ही हमें ठीक करेगा। अब डॉक्टर ही वहाँ पे ऐसे कर रहा है तो हम किसके पास जाएंगे? जो कॉमन पर्सन है वो किसके पास जाएगा? मैं अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात होती ना, तो मैं सोचती कि हाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले आप पैसे डिपॉजिट करवाओगे, फिर आपको डॉक्टर देखेगा, फिर आपको एडमिट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पे तो ये कॉमन पर्सन के लिए बना हुआ है, जहाँ पे जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी वहाँ पे जाता है, उसकी देखा जाता है। पर ये चीज़ तो मतलब सुनने में भी ना अपने मतलब बहुत शेमफुल है, मतलब अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिस कहाँ थी। ऐसे वो कहते हैं कि एक तरफ जो पेशेंट है उसको डॉक्टर्स या स्टाफ कह लीजिए, अगर वो अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर कम से कम स्टाफ था वहाँ पे, और उस औरत को इतने पेनफुल में मरने की हालत में छोड़ दिया, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स, मैं मानती हूँ कि इस टाइम कोई अवेलेबल भी ना हो, लेकिन नर्सिस तो होती है ना। इमरजेंसी में स्टाफ तो हर जगह होता ही है। एक्चुअली वो एडमिट तो कर सकते थे ना उस लेडी को, जो प्रेग्नेंट है, जिसकी पता है कि डिलीवरी हो रही है, वो उसको एडमिट करके उसका कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कर सकते थे ना। मैंने एक्चुअली वीडियो देखी है उस लेडी की कि किस तरह से वो एक फ्लोर पे लेटी हुई है और उसका वहीं पे मतलब उसकी डिलीवरी हो गई है, बच्चा उसका हो गया है। तो आप सोचो कि अगर बाहर ऐसा होता तो फिर भी मानते, एक हॉस्पिटल में ये चीज हो रही है तो नर्सिस कहाँ थी, स्टाफ कहाँ था, डॉक्टर्स कहाँ थे उस टाइम? ऐसे तो माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर, जब किसी ने डॉक्टर बनना होता है, बोलते हैं कि हाँ हम लोगों की सेवा करेंगे, ये करेंगे, बट उस टाइम कहाँ पे गए? मैम, अगर बात करें डॉक्टर्स और स्टाफ की, तो क्या कहना चाहेंगी आप अभी इस मुद्दे पे, इस फैसले पे क्या फैसला होगा? आप नारी शक्ति है, एक नारी के साथ
मतलब इतनी दरिंदगी जो घटना बाकी है वो नहीं होनी चाहिए थी। उसके चलते अभी डॉक्टर और स्टाफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो बरी होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये हमारा कसूर नहीं है, उसके बाद कसूर क्यों नहीं है? अब लेडी की डिलीवरी वहाँ पे होगी है, किसी ने उसको देखा नहीं तो किसका कसूर है? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो ये सोचती हूँ कि सस्पेंड करना चाहिए उनको, क्योंकि जब उनकी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने इस लेडी को, किस पेशेंट को देखा ही नहीं है, तो फिर डॉक्टर होने का फायदा क्या है वहाँ पे? मुझे तो लगता है कि उनको सस्पेंड करना चाहिए। मैं चाहती हूँ। ये तो बहुत शर्मनाक घटना है। देखो, जब डॉक्टर पेशे पे जाते हैं सबसे पहले यही कसम दिलाई जाती है कि आपने निष्पक्ष होके सारा उन मतलब सेवा करनी है पेशेंट्स की। तो उधर ऐसे पेशेंट खराब हो रहा है तो ये तो बड़ी दरिंदगी वाली बात है। इवन एक एनिमल की डिलीवरी हो रही हो ना, और अगर लोग देखें ना उधर भी कवर करने आ जाते हैं। ये तो एक औरत थी, औरत जिसको हम माँ बोलते हैं, जननी बोलते हैं, उसी की इतनी बेइज्जती हो रही है। ये एक औरत की बेइज्जती नहीं है, पूरे औरत जात की बेइज्जती की है डॉक्टर साहब। मैं तो ऐसे डॉक्टर को कहूँगी कि जल्दी से जल्दी इनको बर्बाद किया जाए, सस्पेंड किया जाए। ये तो स्टाफ के लिए भी शर्मनाक बात है ना। देखो, स्टाफ को उनकी सेवा तो करनी चाहिए था ना आगे आके। स्टाफ को किस लिए रखा जाता है हॉस्पिटल में? स्टाफ इसीलिए होता है कि कोई आया पेशेंट, इमरजेंसी में कोई आ रहा है, उसकी देखे, उसको केयर करे। फिर भी वहाँ एक लेडीज डॉक्टर थी, उस लेडीज ने होकर मतलब लेडीज का जो दर्द नहीं समझा, उसके लिए आप उस लेडी डॉक्टर के लिए आपकी क्या राय है? मुझे तो उस लेडी डॉक्टर पे ही शर्म आ रही है। जो एक लेडी होगी, एक लेडी का दर्द नहीं समझ पा रही, वो कैसी लेडी होगी, कैसी डॉक्टर होगी? वो कहते ना एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। तो वैसे मैडम बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं सामने, पर्सन आता है उसे दबा दिया जाता है। अभी का मुद्दा है वो भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए है, उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमेशा दबाया नॉर्मल बंदे को ही जाता है। पैसे वाले तो पैसा दे के पीछे हट जाते हैं, उनका तो केस पता ही नहीं चलता किसी को हुआ क्या क्या नहीं हुआ, बात खत्म हो जाती है। जो नॉर्मल बंदा है उसके बेचारा मजबूर होगा, जो सिविल हॉस्पिटल में गया अपना ट्रीटमेंट करने, वो कैसे अपना कर सकता है? इसीलिए उसकी बात तो उधर ही खत्म हो जानी है। उसका तो मुद्दा किसी ने समझना ही नहीं है, उसके बारे में किसी ने सोचना ही नहीं है। आप क्या मांग करना चाहती हैं प्रशासन से, ऐसे डॉक्टर और ऐसे स्टाफ के लिए? मैं तो कहती हूँ कि इन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, और जो नया स्टाफ आए उससे कम एक ऐसी कसम ली जाए कि कोई भी आए, जो आएगा मजबूरी में आएगा, उसकी अच्छी तरह से केयर करें और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। जो पेशेंट आते हैं वो घर से दुखी होके आते हैं हॉस्पिटल में, आगे उनको ऐसा रवैया मिलेगा तो वो क्या करेंगे? मेरी प्रशासन जी यही मांग है कि वो जो नया स्टाफ रखें उनको कम से कम एक नई कसम ऐड करें उसमें कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसको अच्छी तरह से उसका देखभाल करें, उसका ट्रीटमेंट करें। मैम, जैसा कि मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट ने बताया, मेरे सीनियर्स ने बताया है, ये तो बहुत ही शेमफुल ऐसा हुआ है। ऐसा कभी किसी एनिमल्स की भी डिलीवरी होती है, वहाँ अनपढ़ लोग भी आकर सारों की एनिमल्स की भी मदद करते हैं। ये तो सारा पढ़ा लिखा स्टाफ के पास आई थी, वो उसके बेचारी की किसी ने सुनी नहीं। और इसके लिए मेरे को तो ऐसा लगता है सारे स्टाफ को, सबको ही, डॉक्टर्स को भी खुद ही रियलाइज हो भी गया होगा कि उनसे क्या गलती हुई है। उनको सस्पेंड करना चाहिए और लाइफ टाइम के लिए सबके लिए लेसन होना चाहिए कि कल को अगर कोई भी ऐसा काम करता है, ऐसा इग्नोरेंस करता है, तो उनके लिए फिर सस्पेंड ही एक ऐसा सिस्टम है कि आगे लाइफ टाइम के लिए एक लेसन हो जाएगा सारों के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग, और हम तो यही कहेंगे कि उसको फेवर किया जाए, फुल फेवर किया जाए उस लेडी को, तो सस्पेंड होना चाहिए सिस्टम से। ना सिविल ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਘਟਨਾ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ? ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। जैसे कि आपने देखा और सुना कि यहाँ नारी शक्ति जो है, एक नारी का अपमान होने पे वो बहुत जो रोष है, उनके मनों में क्रोध जो भरा हुआ है डॉक्टर्स और स्टाफ के प्रति,
सब लेडीज़ का, सब हर नारी का यही कहना है कि ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे स्टाफ को जो है वो सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले जो अगली पीढ़ी डॉक्टर्स या स्टाफ की होगी उनके लिए एक लेसन बन जाए, एक सबक बन जाए कि किसी भी तरह किसी भी पेशेंट के साथ इस तरह की बदसलूकी या इज्जत को तार तार किया गया है वो कभी भी ना हो। मैं पुष्पलता अपने सहयोगी शमी स्नोत्रा के साथ हलचल पंजाबी पठानकोट।